Good evening, Komal. So, student, this is the Friday special session, episode 3. My name is Rashmi. I'm a senior relationship manager with Nursing Next Live app. So, today we will be discussing so many important things, right? But before starting the session, I would like to introduce Miss Priyadarshini. She is the batch mentor of Mastermind Plan C Plus Gold Edition English batch for NORCET 8 as well as for NORCET 9. So I would like to request Miss Priyadarshini to please come forward and introduce herself. Yes, hello, am I audible? Yes, ma'am, you are Yes, ma'am. audible. Hello, dear students, a pleasant good afternoon. And this is Priyadarshini, your batch mentor for your Plan C Plus English edition. So basically, to talk a few words about me, I am I'm holding an advanced degree in medical surgical nursing and super specialized in critical care nursing. And I'm a patent holder who holds an intellectual property. Along with, I'm a laureate of All Indian Outstanding Nurse Researcher Award. So I feel so thrilled and privileged to be your batch mentor for your Plan C Plus English edition. So this plan is one of the most exclusive plan, which is completely for the audience who wants the content, who wants the mastermind lectures in English. So this plan is exclusively for them. So I will be the batch mentor from the starting point to the ending point in your NORCET journey, in your NORCET preparation journey. So we are soon launching the Plans Plus English edition in the students forum, and I receive many queries in my Instagram account that students will be asking me, especially the South Indian students, they will be asking me, "Ma'am, when you are coming up with the English edition, or when the mastermind lectures will be completely in English." So the wait is over, and we are launching the Plan Sequence English edition by next week, and I'll be your batch mentor. And all the best to all NORCET aspirants who are preparing for your examination. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your beautiful introduction. And Yes. students, let's start the session. Okay, students, so again, welcoming you in this session where you will be having your Margdarshak team member, Ms. Vaishali Sharma. She will be taking care of all your scientific part as well as she will be giving you the guidelines about the RRB examination, right? And we have Miss Sabina ma'am also in this session, and she will be telling you about the exams and discussion in the plan which you have subscribed, right? And of course, you have the complete team of relationship manager here, and we are there to like answer all your queries, and we will be helping you in managing all your confusions and all your doubts, right? So stay with us till the end of this session. So as we are always saying that your success is our motto. So we, the complete team of NNL application, NNL1 application, and the relationship managers, we all are working for the same aim that your success is our motto. So let's begin this exciting journey and work together towards shaping your bright future, right? You have to trust us, and we are there to guide you, to counsel you at every moment, right? So, this is a very beautiful quote by Robert Tew. We have to follow this quote in our daily life also. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So, don't give up, right? ये बहुत ही छोटा सा कोट है बट इसका बहुत ही डीप मीनिंग है तो आई थिंक यू ऑल आर गोइंग टू फॉलो दिस कोट इन योर डेली लाइफ. So the overview of today's session is like we will be discussing about the achievements, awards, NNL strike rate, NORCET 7 result, and we will introduce our team also. And we will be telling you about the Mastermind Plan C Plus Gold Edition, all about NNL 1 app. Then the total videos as well as the content subject wise which we have uploaded in the NNL 1 app. And we will be discussing about the test, then your evolving trends in NORCET exam scheme, then changing pattern and MCQs in NORCET, and of course your favorite round that is question answer round. Till जब तक क्वेश्चन आंसर राउंड आपका स्टार्ट होता है तब तक आप लोग पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं कम विद अस एट द पर्टिकुलर टाइम. So this is the very like thrilled moment and honored moment for all of us. मतलब जो लोग भी नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ऐप से जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत ही honored moment है that we are like हमें award
दिया गया था, वी आर अवॉर्डेड विद द ईटी नाउ बेस्ट एजुकेशन ब्रांड 2024. So thanks goes to all the students as well as the faculties also. सी स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्राइक रेट. स्ट्राइक रेट जब भी हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होता है तो उसके बाद लाइक वी कैलकुलेट द स्ट्राइक रेट की लाइक हाउ मच थिंग्स स्टूडेंट्स गेट फ्रॉम द एनएनएल एप्लीकेशन. सो दिस इज द स्ट्राइक रेट इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर होपिंग दिस टाइम वी विल बी गेटिंग द स्ट्राइक रेट ऑफ 98 और 99%. राइट, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू. आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए एंड डेफिनेटली वी आर देयर टू कैलकुलेट द स्ट्राइक रेट एंड वी आर होपिंग फॉर द 99% दिस टाइम. दीज आर दी स्टार्स इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोग में से ही ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करी, AIR 2, AIR 4, AIR 8 एंड वी हैव मेनी मोर विद अस. तो हमारे जो भी टॉपर्स होते हैं, रैंक होल्डर्स होते हैं, उन सबको हम प्रॉपरली आप लोगों के सामने इसी तरीके से उनके पोस्ट बनाते हैं, उनको अदर स्टूडेंट्स को एज अ मतलब मोटिवेट करने के लिए. यू कैन सी दो स्टूडेंट्स जो कि कुछ लोगों के इसमें से फ्रेंड्स भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे जिन्होंने नॉर्सेट के एग्जाम को इतनी अच्छी मार्क्स से क्वालिफाई किया. वी हैव more than 500 selections in every batch. Okay, so we have the like those are the toppers. They have given the feedbacks also कि उन्होंने जो जर्नी थी उनकी नॉर्सेट एग्जाम की, एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक अचीवर तक का जो जर्नी था, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है. राइट, सो यू ऑल कैन सी दोज जर्नीज एंड दोज इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप लोगों को भी काफी मोटिवेशन मिलेगा. Right. This is the very recent event which we have done, that is RM 2.0. Right. यहाँ पे हमारे जितने भी टॉपर्स हैं उन सबको हमने फेलिसिटेट किया और ये सारे टॉपर्स यहाँ से बहुत ही अच्छी मेमोरीज लेके गए हैं. दे मेट देयर फेवरेट फैकल्टीज लाइक मिस्टर दीपक मारवा सर वॉज देयर, साक्षी मैम वॉज देयर, मीन्स ऑल दी फैकल्टीज वर देयर एंड द स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड. दे वर वेरी हैप्पी. जब उन्होंने सबीना मैम को देखा, साक्षी मैम को देखा, उनसे बात की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके वो लोग गए हैं. सो होपिंग यू गाइज ऑल्सो, आप लोग भी अच्छा परफॉर्म कीजिए, टॉपर बनिए, हमारे साथ आइए नेक्स्ट इवेंट में. वी विल बी फेलिसिटेटिंग यू एंड ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो गेट दी वेरी गुड एंड प्रीशियस मेमोरीज. दीज आर दी मास्टरमाइंड फैकल्टीज विद अस, जो कि आप सबके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और आपके साथ आप मतलब आपको जो पढ़ाएंगे और थ्रू आउट दी जर्नी जिनके साथ आपको पूरा फॉलो करना है आपका कंटेंट, प्रैक्टिस मटेरियल एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू फॉलो देम till the end. She is our batch mentor, Miss Sabina. She will also be there in this session after some time, and she is taking care of her part also. Means she will be explaining you about the test and discussion part as well as the whatever things we are adding in your plan. I would like to call Miss Vaishali. She will come and she will introduce herself. Vaishali, are you there? Hello everyone. Hello everyone. So my name is Vaishali Sharma, and as you all know today, we know that today is our Friday special session, and I have already introduced myself. I am Vaishali Sharma, your Margdarshak, who will be there with you throughout your journey. जहाँ पे भी preparation में you all need guidance, support, and you feel like you need some kind of margdarshan. कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, so I am here for you guys. And also today we will be discussing about some of the major queries that students are frequently being asking, that RRB का जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है उसके अंदर किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के कितने कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज कैरी करना है. So all these things we'll be discussing today. And one more thing, as we all know, we are part of Plan C Plus. So Plan C Plus के अंदर जो भी टेस्ट आप सबको दिए जाएंगे करने के लिए, so उन टेस्ट का ओवरव्यू क्या है, कौन सा टेस्ट कौन सी चीज को कवर करता है, किस तरह का पैटर्न होगा, वो चीजें भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो आई जस्ट होप आप सब टिल द एंड इस सेशन में बने रहें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं टेस्ट रिलेटेड, जितने भी आपको प्लान में मिलेंगे वो सब आपके क्लियर हो जाए. ठीक है? सो यस मैम. Thank you so much, Vishali. Students, as you all know that we have a team of relationship managers and we all are somewhere connected with you, right? We have our own like list of assigned students and we are continuously in
in conversation with them. आप लोग के जो भी doubts हैं, queries हैं, we are always there. We are just a call and message away. Write and stay connect with us. So I would like to call Miss Sanchari Roy. She is also one of our relationship manager. Now she will be telling you about the plan, Mastermind Plan C Plus Gold Edition. Over to you, Sanchari. Thank you, Rashmi. Good afternoon, students. This is Sanchari Roy, your assigned relationship manager. So, what you are going to get in Plan C Gold Edition? आपको सबको पता है now it's Plan C Gold Edition. So, सबसे पहले आपको जो मिलता है वो है कब का conceptual classes. So, you need to go through all the videos. You need to clear all your concepts from the recorded session, from the conceptual session, right? After that, plan QB and live test are there for your MCQs practice, and all kind of test you are going to get inside this plan QB and tests, right? So along with your conceptual revision, you need to practice MCQs daily. And from here, you can practice MCQ obviously from plan QB and the tests. After that, your live NLL FM for the podcast and everything. And after that, your live doubt session. After every SAT, after every subject assessment test, we are going to start our live doubt session. So first you need to attempt test, and then you can clear your doubts through the live doubt session. Yeah, with Plan C Gold Edition, you are going to get the comprehensive study material जो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है. उसके बाद लास्ट 2 या 2.5 months पहले, before your not set, you are going to get the first year classes through which you are going to revise all the major and minor subjects. You are going to revise through these first year classes. Then Chalo Milkar Pade, it's a podcast kind of thing. You just need to plug in your headphone and you can listen to the golden part and the crisp part through this Chalo Milkar Pade session. It will be kind of revision once again. And then obviously Super 50 test series will be there in your first classes, where from her again you need to practice. So these all the things you are going to get in Plan C Gold Edition. Now, as I already told you, new content आपको मिलने वाला है. यहाँ पे सारे subjects के new content यहाँ पे आपको date मिल जाएगा in another one, ठीक है, जहाँ पे आपको new test, TAT, topic assessment test, mini test जो high yield topics के ऊपर you need to attempt the mini test that is going to be already uploaded है. mini test जो high yield topics के ऊपर है. Then grand test जो होता है full syllabus के ऊपर होता है. And then subject assessment test. So topic assessment test, once you are done with a particular topic. Subject assessment test, after you are going to complete your subjects. Grand test full syllabus के ऊपर होता है. mini test जो होता है high yield topics के ऊपर होता है. Then obviously upgraded study material we are going to get. New features क्या है यहाँ पे? Sorry for the inconvenience. Plan QB test with the enhanced progress report, right? And exciting new podcast series, as I have already told you. First classes, Super 50 test series and Chalo Milkar Pade, वो आपको बाद में मिलने वाला है once you are going to start your revision part. And then simulation based videos भी आपको उसी time मिलने वाला है. New approaches है यहाँ पे. Another one platform है, integrated one nation pre-NOCET test, prelims plus mains का है. Then month-wise integrated guided study plan. We have already shared a updated TOC with you all. So the students who are going to follow the TOC, it will be kind of guided study plan for them. And अगर किसी students को लगता है खुद का plan बनाना है, पहले मुझे अपना weak subject complete करना है, फिर मुझे अपने strong subjects पे आना है, साथ ही साथ मुझे अपना minor subjects भी complete करना है, it's totally up to them. They can follow their own schedule. And then higher topics, keyword test and discussion by subject expert, जो already I have already discussed कि आपका जब SAT होने वाला है, subject assessment test होने वाला है, उसके बाद उसकी Q&A होने वाला है, that you need to attempt to खुद को जज करने के लिए आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है. The new mentorship orientation program as we are conducting along with your मार्गदर्शक. Saturday booster and live out session होने वाला है, ठीक है. Toppers interaction sessions that you are going to get their guidance कि उन्होंने कैसे अपने preparation किया था, and जो आपके doubts रहेंगे, जो आपके questions रहेंगे, that we are going to resolve. Can we have the next slide, please? Anamika, please mute yourself.
Thank you, Anamika. So students, once you subscribe the plan, you receive a welcome call from your respective relationship manager. So we as well, we share some of the welcome messages with you. First and foremost is your KYC form. Students, you all are requested to fill the form without fill. This KYC form is very important. For safety and security purpose, this KYC form is required. Plus, we get to know a student through this KYC form. So filling up this form is mandatory for all the students. Along with that, we also shared a TOC or guided study plan that I just have explained. If someone is going to follow the TOC, it will be kind of guided study plan. The schedule we have already shared in the TOC. If you are going to follow the schedule, it will be kind of guided study plan. और जिस students को अपना self study करना है, they can make their own plan. Now over to Vaishali. Thank you so much, Sanchari, for your wonderful explanation about the Mastermind Plan C Plus Gold Edition. Now, students, I'm going to discuss about the 4-way approaches of Plan C Plus Gold Edition. जैसा कि आपको मिस संचारी मैडम ने अभी पूरा एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आई गई होंगी. So उसका जिस्ट ही है that is your 4-way approaches for Plan C Plus Gold Edition. One is the conceptual learning with the test and discussion session and Super 50 test series. Right. Then you have a recorded conceptual classes for concept building by the India's top medical and nursing faculty. You will be getting the conceptual practice with basic to advanced level live test and question bank. Then conceptual revision, fast track classes of high yield topics by the mastermind. So basically ये जो steps हैं कि आपको पहले अपना पूरा ध्यान अपने basics पे रखना है. You have to cover your syllabus. Every subject is equally important. आप किसी भी subject को ऐसे नहीं सोच सकते कि ये तो minor subject है, इससे कुछ नहीं आ रहा है, last 3-4 सालों में तो नहीं आएगा. No, you can't predict anything about the NORCET entrance exam, right? Every subject is equally important. उसके बाद when it comes to practice, you have to do the practice as much as you can. The more you do the practice, the more you come to know about yourself कि आप किस subject में अच्छा perform कर रहे हैं, किस में अभी आप up to the level नहीं है, right? So practice is the key. After doing the practice, the revision is the very important part. आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप स्मूथली चीजों को कवर कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी क्वेश्चंस को करने की, समझने की, एंड यू कैन परफॉर्म लाइक अगर आपको एक ही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में दे दिया जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस यू हैव टू गेट बिफोर गोइंग टू NORCET एंट्रेंस एग्जाम, राइट? तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. आप हर एक स्टेप को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल होगा, राइट? सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो आप हर चीज पे पूरा अच्छे से फोकस करें. Now I would like to call Miss Vaishali to cover this slide. Okay, so let's continue. जो स्क्रीन आपको अभी विजिबल है, उस स्क्रीन में कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन मेंशन्ड है, जिसमें हमारा जो ये कोर्स होने वाला है ये अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक चलेगा. एंड वी ऑल नो हमारा NORCET का एग्जाम स्केड्यूल्ड इन अप्रैल. सो हमारा पूरा ये प्लान इस तरह से स्केड्यूल्ड है जिसमें आपकी अक्टूबर टू दिसंबर टिल जनवरी कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी. एंड इन दिसंबर ओनली हमारे कंसेप्चुअल लर्निंग विद प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी कंसेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे क्लासेस में, उन सबकी एक प्रॉपर लर्निंग और प्रैक्टिस होनी बहुत मस्ट है. बिकॉज वी ऑल नो कि जब भी हम NORCET का एग्जाम देने बैठते हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर कि जब भी NORCET का एग्जाम हम देने बैठते हैं, वहां पे एक ही चीज हमें रियलाइज होती है कि काश हमने ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया होता, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होता. तो यस, अगेन इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो वो पार्ट भी कवर होगा. एंड फॉलोइंग दिस पार्ट उसके बाद आती है हमारी कंसेप्चुअल रिविजन, जिसमें हम अभी तक की जितनी भी टिल जनवरी जितनी भी हम कंसेप्ट, थ्योरी और जितने नोट हम प्रिपेयर करेंगे और हम जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उन सब का कंसेप्चुअल रिवीजन होगा. बिकॉज रिवीजन इज अगेन द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन पार्ट. NORCET विदाउट रिवीजन इज क्वाइट वेरी टफ, वेरी इम्पॉसिबल. सो अगेन फेब और मार्च में हमारा कंसेप्चुअल रिवीजन होगा. एंड इन अप्रैल एंड मई देयर विल बी योर बोनस टेस्ट एंड रिवीजन टेस्ट. ठीक है, दैट आर टू बी अनाउंस्ड सून.
तो वो पार्ट हमारा अप्रैल और मई में कवर होगा. डन. देन नेक्स्ट Thank you so स्लाइड much, मैम. Vaishali. Okay, students, so this is the master stroke booklet. Like जिन लोगों ने, those who have joined the Mastermind Plan C Plus Gold Edition in the month of November, right? So November onwards, we are going to dispatch the same book to the subscriber. So do not get confused. November के पहले जिन्होंने plan subscribe किया है, उनको last minute revision notes and practice pearl की booklet मिलेगी, and November onwards, the students will get the master stroke booklet. राइट अगर वैसे तो हम सारे आरएम्स ने आप लोगों को पीडीएफ शेयर की है मास्टर स्ट्रोक बुकलेट की. इन केस अगर आपके पास पीडीएफ नहीं आई है तो काइंडली मैसेज योर आरएम, योर रिलेशनशिप मैनेजर, दे विल रीसेंड यू. ओके, एंड दिस इज द चैनल, योर व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, जो कि जब once you became the paid subscriber, we share the welcome messages with you. So this link is also one part of that welcome messages. So click on that link and follow the link. You will get connect to our WhatsApp channel where you will get all the updates as well as information on time. Right? तो आपको सारे updates आपके relationship manager के status से और WhatsApp group से पता चलते रहेंगे. Rest you can connect with your RM also. Now this is the NNL1, our new application. और इस पूरे NNL1 के बारे में I would like to call Miss Shubhra. She is also one of the relationship managers. Miss Shubhra Datta, and she is going to explain you about the NNL1 app. Over to you, Shubhra. Thank you, Rashmi ma'am, and a very good evening to all my students. मुझे पता है आप सबको बहुत सारे क्वेरीज हैं NNL1 को लेकर, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं NNL1 के वीडियोस को लेकर. मेरे को एक एक करके करने दीजिए. पहले मैं एक एक करके वर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम. NNL1 is our new phase or new app for your continuing study or for your conceptual learning, practice and revision. जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं नए प्लेटफॉर्म पर, काइंडली डाउनलोड द ऐप एंड डू द लॉगिन. डायरेक्टली लॉगिन करिएगा. आप साइन अप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आवर बैकएंड टीम हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू फ्रॉम द बैकएंड. So what you need to do is just download the app and do the login and then start accessing the content. अब जिनकी शिकायतें हैं कि वीडियोस आर स्टिल लॉग, प्लीज वेट फॉर अ डेज टाइम. आज we have an update. We had a meeting with our team, backend team, and they have promised us that they will resolve this issue by 24 hours from today. तो आपको कल तक में आपकी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा. इन केस आप कुछ स्पेशल केसेस में अगर कल भी आपको वीडियोस नहीं मिल रही है, प्लीज कनेक्ट विद अस. हम फिर 24 आवर्स में आपको रिजॉल्व करा देंगे. एंड दिस इज द फाइनल प्रॉमिस वी आर गिविंग यू. 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स. हम 24 आवर्स में आप लोगों को करा देंगे अगर आपको कल भी वीडियोस लॉक मिलती है. नाउ कमिंग टू द ऐप, इफ यू ओपन द ऐप, दिस ऐप इज अ मच यूजर फ्रेंडली ऐप आई वुड से. बहुत सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ दी हुई हैं. NNL और NNL के पुराने ऐप और NNL1 में डिफरेंस यही है कि वहां आपको सारा कंटेंट जो है वो प्लान वाइज मिलता था. आपको जब आप ओपन करते थे तो आपको प्लान्स दिखते थे और प्लान्स के अंदर आपको कैटेगरीज दिखती थी, वीडियो, नोट्स, टेस्ट वगैरह. NNL1 इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सेम. वहां आपको कैटेगरीज के अंदर प्लान दिखेगा. So if you do the login, आपको फर्स्ट इंटरफेस पे पहले ही आपको MCQs ऑफ द डे ये सब दिखेगा. Just scroll down the page. नीचे देखिएगा 5 segments हैं. One is home, then it's notes, videos, QBank and test. Home is your home page. Test, QBank and notes में आपको 2 segment मिलेंगे. Nauset and NCLEX and undergrads. You have to explore the content given under Nauset और NCLEX segment. वीडियोस में फॉर द टाइम बिंग आपको 4 सेगमेंट मिलेंगे, ऑल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, एंड यू हैव टू एक्सेस द वीडियोस गिवन अंडर द ऑल सेगमेंट. In case we have a change in the presentation of the same, we will be notifying you and we will be explaining you from where you will explore the content.
अभी के लिए हमारे वीडियोस जो है मैक्सिमम 80% वीडियोस हमारे अपलोडेड है। वीडियोस में सिर्फ MSN के और MHN का कुछ कंटेंट बाकी है, वो हमारा अपलोड हो रहा है, डिजाइनिंग प्रोसेस पे है, अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम NNL से पढ़े या NNL 1 से पढ़े। NNL 1 के सारे वीडियोस जो है वो अपडेटेड वीडियोस है, जिसमें हमने जितना आप लोगों को जरूरी है, जितना अपडेटेड कंटेंट है वही हमने यहाँ फिल्टर करके डाला हुआ है। तो प्लीज वॉच द वीडियोस अपलोडेड इन द NNL 1 फॉर योर कंसेप्चुअल लर्निंग एंड कंसेप्चुअल बिल्डिंग फेज। ठीक है, नोट्स में हमारे नोट्स अपलोडेड होते जा रहे हैं। वी आर अपलोडिंग नोट्स एज पर आर TOC। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में सारे नोट्स आपको मिल गए हैं। जैसे फार्माकोलॉजी एज पर TOC फार्माकोलॉजी इज ओवर, तो आप अगर नोट्स में फार्माकोलॉजी सेक्शन में जाएंगे तो आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स मिलेंगे। सेम गो विद TOC, द कंटेंट विल गेट ऑटोमेटिकली अपलोडेड एज पर TOC। क्यू बैंक का एक्सेस आप लोगों को मिल चुका है। क्यू बैंक में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। अगेन जैसे फार्माकोलॉजी, वी आर थ्रू विद अपलोडिंग द कंटेंट। तो एज वी आर अपलोडिंग कंटेंट एज पर द TOC, आप TOC को काइंडली रेफर करें। पेज 25 में कंसेप्चुअल लर्निंग का वो दिया हुआ है, उसमें जिस तरह का हमारा फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। आप लोगों का भी जितना कंटेंट अपलोड हुआ है उसको आप एक्सेस करते रहे। टेस्ट में भी हमारे मिनी टेस्ट स्पेशल नहीं दिए हैं, वो टेस्ट वो उन्हें जरूर दे। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि एक बार एक टेस्ट दे दिया मैम हो गया। एक टेस्ट को आप दे रहे हो, उसके जो रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं उसे मार्क करिए और उसे फिर दीजिए। एक टेस्ट आपको तब तक देते रहना है जब तक कि आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट ना हो जाए। राइट सबीना मैम हमेशा हमें यही गाइड करती है कि हमें टेस्ट को रिपीट करते रहना है। तो please keep revising your concept, please keep repeating your test so that you please go to the next slide. यहाँ this is the slide where we have uploaded कि हमें कितना कंटेंट। yes of course हमारे इंग्लिश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही कंटेंट अपलोड हो रहा है। वी आर अपलोडिंग लेक्चर्स इन बोथ द लैंग्वेज सो दैट यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल योर कंसेप्चुअल learning a concept building phase. We have uploaded this much of content where we have mentioned the number of recorded hours which we have uploaded. So please go through these sessions, make your own notes, which is mandatory for each and every student. कि आप जब भी कोई वीडियो देखें साथ में you make your own concise notes, own form language, because these notes are going to be a last minute revision resource just before 7 to 10 days of your exam. For the next slide, I will request Rashmi ma'am to continue. Okay, so Vaishali will explain you about the test and its importance and when you have to attempt those tests. Over to you, Vaishali. Thank you, ma'am. So let's discuss about the test that you all will be getting in this plan. First, you can see is the topic assessment test. What you will get in this is topic assessment test. As the name suggests, जब भी कोई topic complete होगा आपको TAT एग्जाम देना है, TAT का टेस्ट देना है, एंड यू ऑल विल बी गेटिंग दिस इन योर क्यू बैंक. ओके, सो TAT का टेस्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टॉपिक यू आर कवरिंग इन द प्लान. जो भी आप वीडियो का लेक्चर खत्म करेंगे उसके बाद में आप अपना TAT का एग्जाम देंगे. आफ्टर दैट देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम शॉर्टली वी एब्रीविएट एज SAT, जिसके अंदर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को कवर किया है, ताकि जैसे ही आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं उसमें आप कंप्लीट अपने आप को एनालाइज कर सके कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से पर्टिकुलर ऐसे पार्ट है जहां पे आप वीक हो, ठीक है, या कौन से ऐसे पार्ट है जो आपके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं. सो बेसिकली इट इज कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. देन आफ्टर दैट देयर इज CPAT, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्री असेसमेंट टेस्ट.
if I give you an example, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले हम एक प्री एंड पोस्ट टेस्ट करते हैं, राइट? सो उसी तरह से जब भी हम CPAT टेस्ट की बात करें, सो इट इज बेसिकली डिजाइंड एज लाइक दैट ओनली कि आपकी प्रिपरेशन से पहले जो नॉलेज है, ठीक है, जो प्रिपरेशन आपने अभी स्टार्ट करी है उससे पहले की जो आपकी नॉलेज है उसको असेस करेगा आपका CPAT एग्जाम, कि आप अभी अपनी नॉर्थ से, अगर आपका टारगेट है तो आप अपनी प्रिपरेशन में अभी किस जगह पे लाई कर रहे हो, ठीक है, किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो. आफ्टर दैट देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन टेस्ट, CET, जिसके अंदर अगेन आपका कंप्लीट इवेल्युएशन होगा इंक्लूडिंग योर सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपके सारे कंटेंट को कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है मैम, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. Yes, after that there is monthly revision test. Yes, again this monthly revision test is going to be the pill, or you can say it is going to be the booster of your preparation part. Why I am saying this is because monthly revision test will be conducted on the starting of every month. जितना कंटेंट आपने अब तक पढ़ा होगा, it will be covering all the subjects in the end of the month. जो सब्जेक्ट आपने सपोज इस मंथ के एंड तक पढ़ा होगा, उसका नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में टेस्ट होगा, जिसमें सारे कंटेंट को कवर किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेगा NNL प्री नॉर्सेट CPT एग्जाम. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉर्सेट एग्जाम, जो हमारा एक तरह से रियल टाइम एक्सपीरियंस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, एग्जैक्ट जिस तरह से हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी तरह से होगा. एंड अलोंग विद दिस वी विल बी हैविंग सम सरप्राइज टेस्ट दैट विल बी अनाउंस्ड इन बिटवीन योर मीनवाइल योर कोर्स इज गोइंग ऑन. बीच में सरप्राइज टेस्ट भी प्लान होंगे. एंड अगेन NNSAT is the very popular exam. As we all know, NNSAT हमारा नॉर्सेट एग्जाम को मेनली फोकस करता है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं लेते, ना ही हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं. इसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, सारे टॉपिक्स को, माइनर मेजर एवरी पार्ट इज बीइंग कवर्ड इन NNSAT. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉर्सेट एग्जाम, जिसमें अगेन प्री एंड मेंस दोनों लेवल का एग्जाम होता है, जस्ट लाइक द नॉर्सेट एग्जाम. So this was about all the tests. Now we will be discussing the basic trends, evolving trends in NORCET exams की, कि किस तरह से हमारे जो NORCET का एग्जाम है, NORCET every year NORCET is changing its pattern, NORCET is changing its examination scheme. So अभी करंट में जो recent updates हैं वो क्या है, हम सबसे पहले मेनली उसी पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन एलिमेंट आता है दैट इज आर स्टेजेस ऑफ एग्जाम. सो वी ऑल नो हमारा जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में कवर करवाया जाता है. फर्स्ट इज योर प्रीलिम स्टेज एंड सेकंड इज योर मेन स्टेज, which is also known as stage 1 is known as qualifying stage and stage 2 is your selection stage. Then how many number of questions will be covered in every stage? This is the major query that I have seen students are frequently asking is, जो टोटल क्वेश्चन है स्टेज 1 के अंदर हमारे टोटल 100 MCQs आते हैं, एंड इन स्टेज 2 देयर आर टोटल 160 MCQs. एंड नाउ ड्यूरेशन, व्हिच इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स, कि ड्यूरेशन कितनी होगी. अगर हमारे 100 क्वेश्चंस है तो नॉर्सेट इज गिविंग, एम्स इज गिविंग फॉर 100 क्वेश्चंस इट इज गिविंग 90 minutes, and in stage 2 it is given 180 minutes. Okay, and these minutes, this duration is given on the basis of your level of paper. क्योंकि हमें पता है हमारा जो क्वालिफाइंग स्टेज है, प्रीलिम्स का एग्जाम आता है, उसके अंदर हमारे नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग आती है. ठीक है, और जो हमारा फाइनल स्टेज होता है, मेन स्टेज होता है, उसके अंदर हमारी कंप्लीट नर्सिंग होती है. अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो ड्यूरेशन है ये एम्स ने सेट किया है. आफ्टर दैट देयर इज अ सेट. सेट मींस हमारे जो क्वेश्चन का जो एक पैटर्न होता है, जब हम क्वेश्चन CBT अपना कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं, वो किस तरह. I think some network. Am I audible to you? Yes. Yeah, you are audible. Okay, students. So I think some network issue was there. So I'm just continuing this slide. So the next thing is syllabus.
Students, as you all know, in the old stream, the syllabus was 180 MCQs नर्सिंग सिलेबस एंड 20 MCQs जीके एंड एप्टीट्यूड। तो जिसमें कि 20 नंबर में आपके 20 MCQs आपके जीके एंड एप्टीट्यूड से आते थे। पहले 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, जिसमें कि 180 आपके सारा अदर कंटेंट है, 20 मार्क्स में आपके जीके एंड एप्टीट्यूड, राइट। उसके बाद आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 होके आने लगा प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स 100 मार्क्स एंड मेंस 100 मार्क्स। प्रीलिम्स में भी आपके 80 क्वेश्चंस में मतलब 80 मार्क्स में आपके सारे अदर सब्जेक्ट्स, 20 मार्क्स में आपके जीके एंड एप्टीट्यूड, एंड इन मेंस पूरा का पूरा 100 आपका नर्सिंग सिलेबस से आता था। 100 मार्क्स का नर्सिंग सिलेबस आपका आता था। नाउ इन द रिसेंट अपडेट, स्टेज 1 80 क्वेश्चंस and nursing and 20 MCQs GK and aptitude means the same like in the prelims, but in the stage 2 जहां पे आपका 100 मार्क्स का नर्सिंग सिलेबस का पूरा आता था, नाउ इस बार क्या हुआ है 160 क्वेश्चंस का आपका नर्सिंग सिलेबस से आया है। सो दैट वाज आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि यू कांट प्रिटेंड कि नर्सिंग में कब क्या चीजें चेंज हो जाएं, इसलिए यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से पेपर आ जाए, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, राइट। तो इसी चेंजेस का पूरा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका, जो चीजें चेंज हुई हैं नॉर्थ से 2020 से लेके 24 तक, राइट। सो दिस इज दी समथिंग आरआरबी एग्जाम पैटर्न वैशाली इज गोइंग टू डिस्कस। आप लोगों ने ही बोला था कि नेक्स्ट टाइम हमें आरआरबी से रिलेटेड सारे ब्रीफिंग्स चाहिए, सो एज पर योर डिमांड वी हैव दिस। So Vaishali, are you there? Yes, ma'am. Yeah, She's- over to you, Vaishali. Please continue. Yes, thank you, ma'am. So students, now we will be discussing about RRB exam pattern जो अभी recent में हमारा चल रहा है। So RRB exam pattern का already जो हमारा application process था वो over हो चुका है। We all know that कि last 26th of September को हमारी correction window off हो गई थी RRB exam pattern की। So now everyone knows it very clearly कि हमारा नॉर्थ से RRB का जो एग्जाम रहने वाला है वो होपफुली इट विल बी कंडक्टेड इन द कमिंग मार्च। होपफुली कोई एक पर्टिकुलर अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन की है अपने किसी भी नोटिफिकेशन में, बट यस वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि हमारी जो डेट आएगी वो होपफुली इन मार्च 2025 आ सकती है। सो वी हैव सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी एग्जाम, right? So before proceeding towards the preparation part, we should know that what all content, what all subjects will be covered in this exam. So we will be discussing all those things today, and I'll be sharing some of the examples with you also कि एग्जाम जो प्रीवियस हमारा आरआरबी का एग्जाम आया था, लाइक 2019 में जो हमारा आरआरबी का एग्जाम आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सो दीज ऑल सब्जेक्ट्स वर कवर्ड इन योर आरआरबी एग्जाम, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट है, वी आर नर्सिंग प्रोफेशनल, तो सबसे पहला हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी के ही हमारे 70 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें every question will be carrying one professional ability is all based on your nursing field and your nursing subjects. Then there comes general awareness, general. Student, I think there is some network connectivity issue at her part. So as you can see on the screen, these are the subjects, then the number of question and the marks allotted, right? If you want, you all can take a like the click of the same slide so that आपके like for your future aspects you can use this, right? These are Vaishali ma'am has joined. Let her continue with the slide. I'm so sorry, my network is fluctuating. yeah. So yes, all these subjects will be in the RRB exam. And now, ma'am, can you please click on the next slide? Yes. So this is the example. This was the question, memory-based question that was asked in 2019 RRB exam is which one of the following is not a type of back massage? It is a like one-liner question, right? जो हमारा डायरेक्ट एक थ्योरी से उठाया गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आते आरआरबी एग्जाम में, बहुत एडवांस क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, बट यस अगेन यू हैव टू प्रिपेयर like your RRB exam is going to be based on your moderate level of questions, basic to moderate, right? So before giving RRB exam, you should be well versed with all your basics and your moderate level of content, moderate level of theory, so that you can achieve
good rank in your RRB exam, and the vacancies are above 700, so prepare accordingly, right? So the next question is, ma'am, please. Yes, this is the example third. Next question is, it is from your general knowledge. Pench National Park is situated in which state? Okay, this was again from 2019 Shift 1 exam. And the next question, please. Spinal cord is made up of. You all can see that this is the very basic question that we have already studied in our first year of nursing, right? So this type of question will be asked, or most probably will be asked in your RRB next exam. But as we all are very well versed that the current recruitment process of nursing is now very advanced. From 2019, it is now very advanced if we compare from our back previous year exam. So yes, we can assume that topics can be repeated or some of the content can be repeated, but we can't rely completely on these type of questions कि हमेशा क्वेश्चन यही वाले इसी तरह के पूछे जाएंगे. इसमें बेसिक पूछा है, बट इट डजंट मीन कि अभी भी बिल्कुल बेसिक आएगा. सो यू गाइज हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि मॉडरेट लेवल तक अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए. ठीक है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यू गाइस कैन रेफर, बट कंप्लीटली रिलाई नहीं करना कि यही बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न रहेगा. अपने आप को हमेशा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें इतना प्रिपेयर खुद को करना होता है कि अगर हमारा एग्जाम एक फर्स्ट लेवल तक का आ रहा है तो वी शुड प्रिपेयर टिल सेकंड लेवल की. अगर सेकंड लेवल तक गलती से भी कोई एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा वो क्वेश्चन मिस ना हो या हमारा वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग ना करे. ठीक है. तो हमेशा एक स्टेप हमें आगे रह के सोचना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है. बिकॉज वी नो, जैसा रश्मि मैम ने भी बोला, वी कांट प्रेडिक्ट कि हमारा एग्जाम कैसा आने वाला है. सो वी गाइस हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम. Okay, so this was about your RRB exam pattern. And now, ma'am, please next slide. Yes. Thank you so much, Vaishali. You have fulfilled the demand of students in a very, very productive manner. And student, I hope आप सबको ये RRB के बारे में जो भी वैशाली मैम ने आपको बताया, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया. And you are going to follow her instructions. The way she has explained you, तो आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से फॉलो भी करना है. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस सबीना मैम टू लाइक कंटिन्यू द थिंग्स. So very good evening, everyone. Very good evening. I hope you all are doing great. And it was again a wonderful session by your relationship manager and Vaishali, your margdarshak, जहाँ पे finally, because you all are demanding कि RRB बड़ी demand में चल रहा है. RRB नॉर्सेट और RRB दोनों में है, जिसमें भी हो जाए बस हो जाए, राइट. सो RRB का एक ओवरव्यू मिल गया है, बट अगेन द थिंग्स इन योर हैंड ओनली, वेयर यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे, राइट. सो RRB इज मोस्ट ऑफ लाइक, जैसे वैशाली ने बोला दैट इट इज अ मॉडरेट लेवल, बट वी कांट प्रिडिक्ट. नाउअडे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं ESIC में. सम ऑफ द इन वन ऑफ द स्टूडेंट हैज commented that ESIC pattern got changed at the last moment. So yes, true. So for this we have to be ready, because at the end our aim was NORCET, right? We have started our preparation for NORCET, but because RRB is in between, so हमें वहां भी फोकस करना है. तो हम क्या, आप एज अ स्टूडेंट कर तो तैयारी NORCET के लिए रहे हो, तो आपका पैटर्न बेस एक ही होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉडरेट लेवल एज वेल, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट पार्ट. आई एम श्योर जितने भी बच्चों की क्वेरी थी कि NNL से पढ़े या NNL 1 से पढ़े, बाय नाउ वो सॉल्व हो गई होगी. आपके पास कोई भी एक्सेस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेस है, चीजें मिल रही हैं, जब तक चीजें मिल रही है मैं उसको यूज करूं, राइट. तो NNL हो चाहे NNL 1 हो, तो ये टेस्ट अभी ये लाइव हो चुके हैं. ये जो सारे टेस्ट देख रहे हो ना, मिनी टेस्ट, सिस्टम वाइज स्पेशल टेस्ट, स्टिल स्पेशल टेस्ट, these all tests are live. Mini test, BLS, ACLS is live. Nursing intervention, recent update on infection, lab report, daily dose calculation, emergency medicine. एक आपका 2 system wise test live हो चुके हैं, 3 rather I should say, scenario based and IBQ test. So these tests are again
प्ले अ मेजर रोल, जहां से आप आरआरबी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो या नॉर्सेट के लिए भी कर सकते हो। सबसे पहले जिन भी बच्चों को ये टेस्ट अभी तक नहीं मिले हैं, पहले तो ये टेस्ट आप सी प्लस में जाके देखिए। ये सी प्लस में ये सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मैंने खुद चेक किए हैं ऐप के अंदर, ये आपको वहां मिल जाए। तो आप ये टेस्ट को ना प्रैक्टिस करो, ये टेस्ट से नोट्स बनाओ। राइट, एक बार टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लास्ट में जो एक अपकमिंग टेस्ट यहाँ पे लिखा है विच इज सीईटी। नाउ विशाली हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन यू कि कितने सारे टेस्ट हैं। अमंग दीज देयर इज वन टेस्ट विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेस्ट, जो हमने बोला था कि वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट, सो आप उस सब्जेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करोगे कि मेरा ये सब्जेक्ट का कंसेप्ट अच्छा है बाय दिस सीईटी। तो सीईटी को जो आपके ऐप के अंदर अपलोड होगा वो इंटीग्रेटेड पैटर्न में होगा। मतलब जैसे अभी जो पहला सीटी अपलोड होने जाएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ, इट विल बी अपलोडेड बाय टुडे और बाय टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ। तो कल तक ये टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा सीईटी का। राइट, जिसने भी पीडियाट्रिक एंड बायोकेमिस्ट्री कवर कर लिया है दे कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे इस जो टेस्ट है। एंड इफ yes we can, yes we have the slide, so total 160 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिना नेगेटिव मार्किंग के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एंड ये टेस्ट के बेसिस पे अब आप लोग अपने आप को इवेलुएट करोगे कि हाउ वेल यू अंडरस्टूड द पीडियाट्रिक सब्जेक्ट एंड द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। सो अगर आपने पीडियाट्रिक एंड बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट अगेन ये चीज देखो, जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, मैंने अपनी फर्स्ट सेशन में भी बोला था, ईदर फर्स्ट यू हैव टू हैव अ टाइम टेबल। आपको कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, इट इज टोटली अप टू यू। वी कैन शो यू आर गाइडेंस, कौन से मेजर है, कौन से आपके असेंशियल है, कौन से डिजायरेबल है। दिस वी हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि भाई मेजर सब्जेक्ट है, सबसे पहले मेजर पे ही फोकस करते हैं। और मे बी यू हैव दिस हैबिट कि मैं एक मेजर लेके चलूंगी, एक माइनर लेके चलूंगी। इस तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। राइट, सो इफ यू हैव कंप्लीटेड बायोकेमिस्ट्री एंड पीडियाट्रिक, और अभी तक, क्योंकि अभी हमारा काफी टाइम हो चुका है, राइट, वी आर इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ नवंबर, अब दिसंबर शुरू होने वाला है, तो मेक श्योर करो कि एक मेजर सब्जेक्ट तो आपका खत्म हो जाए। राइट, जिसने भी लास्ट वीक ज्वाइन किया है या लास्ट वीक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक कोई मेजर सब्जेक्ट को फोकस करो कि मेजर सब्जेक्ट में हाई यील्डिंग टॉपिक आपने 80% तक कवर कर लिया हो मेजर सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो सीईटी पहला अपलोड होगा विच इज ऑफ पीडियाट्रिक एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड ये टेस्ट को पहले देना, देने के बाद यू हैव टू इवेलुएट कि आप कौन सी रैंक में फॉल कर रहे हो। आपकी वहां पे स्कोरिंग, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट किससे आप देखोगे कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, क्या मैं नॉर्सेट की ट्रेन में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, या मैं नॉर्सेट की ट्रेन के बाहर जो प्लेटफॉर्म, जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, मैं वहां पे हूँ, या फिर मैं प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बाहर, अभी जो होता है ना रोड के साइड में जो स्टेशन में जो हमारे रिक्शा खड़े होते हैं, मैं वहां पर हूँ। आप हो कहाँ पे, ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन के बाहर हो, प्लेटफॉर्म से भी बाहर हो, दिस यू नीड टू इवेलुएट। इवेलुएट का जो है बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं होता टू लेट यू नो कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, यू शुड फॉरगेट अबाउट दिस गोल। नो, इवेलुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज इवेलुएशन विल टेल अस कि हमें और कितनी मेहनत करनी है, हमें और कितना टाइम लगेगा उस नॉर्सेट की ट्रेन में बैठने के लिए। और हमें ऑफ कोर्स हमें फर्स्ट कोच ही चाहिए, थर्ड कोच से काम नहीं चलेगा। तो वो फर्स्ट कोच में भी बैठने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। दिस इज द रीजन व्हाई दीज टेस्ट आर prepared and they will help you to evaluate by yourself। कोई आपको नहीं बताएगा, आपके पास आपका रिजल्ट होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं भी प्लेटफॉर्म से सड़क के भी उस क्रॉस करके मैं वहां पे खड़ी हूँ जहाँ पे रिक्शा या ऑटो रिक्शा जहाँ पे होते हैं, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा ट्रेन में। टाइम है, अगेन लेट मी टेल यू, टाइम है आपके पास। द एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यू हैव टाइम, ऑल यू हैव टू डू इज बहुत ही स्मार्टली यूज करिए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, कीप ऑन रिवाइजिंग। पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा तब रिविजन करने बैठेंगे, नहीं, जो भी डेली पढ़ा है 10-15 मिनट निकाल के दोबारा रिवाइज करो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ो कि आपको समझ में आए। राइट, सो यस, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू शेयर कि ये टेस्ट आपके लाइव है। ये टेस्ट जिसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, प्लीज अटेम्प्ट दीज टेस्ट। यही टेस्ट के बेसिस पे आरआरबी के भी क्वेश्चन आएंगे, इसी टेस्ट से आपके नॉर्सेट के भी क्वेश्चन आएंगे।
So that's all from my side. I think Rashmi, we can start the question answer session without any delay because I'm sure बच्चों की काफी query होती है. The students, so come one by one. Switch on your camera and ask your query. We have a Margdarshak with us and she's taking all your scientific query. मैम गुड इवनिंग। वर्किंग के साथ में कुछ स्पेशल अगर गाइडलाइंस मिल जाती, वर्किंग के साथ में कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और NNL1 ऐप है उसका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं मिल पा रहा है, उसमें यही एक ही रिपीटेड आंसर मिल रहा है कि उसमें टाइम लगेगा बस। अरुण प्लीज अपनी क्वेरी फिर से पूछिए। मैम वर्किंग के साथ में सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं वो थोड़ा सा उसका गाइडेंस चाहिए, और NNL1 ऐप का रिपीटेड आंसर सेम मिल रहा है कि उसमें अभी टाइम लगेगा अदर नथिंग। देखो NNL1 का आंसर तो मैं बता देती हूँ। NNL1 में लाइक एज शुभ्रा मैडम हैज जस्ट एक्सप्लेन्ड यू कि आज हमारी मीटिंग हुई थी एंड नाउ थिंग्स आर क्लियर। मैनुअली उस पे काम हो रहा है, राइट? तो मैनुअली चीजों को करने में थोड़ा समय तो लगता है, तो इट विल बी ओके, डन। आई होप डजंट मैटर। आज आपका हो जाएगा, राइट? ओके ओके नाउ मूविंग डजंट फॉरवर्ड मैटर, योर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक वर्क वैशाली टू आंसर योर दैट क्वेश्चन। वर्किंग के साथ में थोड़ा मैनेज करना कैसे? So dear, वर्किंग के साथ में आई कंप्लीटली अग्री, थोड़ा मेजर टास्क है ये, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज मैम मैं करना। अभी भी ऑन ड्यूटी अभी मैं ऑन ड्यूटी देख रहा हूँ, बट नहीं, वो चीज मेरे को समझ में आ रही है, और ये सिर्फ आपका कंसर्न नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग के साथ में मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम किस तरह थोड़ा से सा ना करना है। एक प्रेशर उस चीज का क्या है कि ओवरेज होने को जा रहे हैं, बस लास्ट अटेम्प्ट बचे हैं, बस वो थोड़ा सा कंसर्न है, और ऐसी जगह पे है जहाँ से बस निकलना है, बस एक ही मन में है। Yes, so Yes, ma'am. basically your this NORCET is the ultimate aim. So Yeah. जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले तो जस्ट टेल मी, क्या आपने कोई प्लान प्रिपेयर किया है, प्रॉपर प्लान जिसको यू हाँ, आर फॉलोइंग, जिसमें आपने अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं? मैं एक डेली का एक टेस्ट देता हूँ, उसके बाद में मैं जो नोट्स है वो बना रहा हूँ साथ साथ में, और जो नोट्स जो बन गए हैं वो रिवाइज कर रहा हूँ, बस ये चीज कर रहा हूँ, और जो टारगेट है बुक से उसमें से 100 क्वेश्चन डेली का कर रहा हूँ। तो आपका प्लान ठीक है, परफेक्ट है, बट इसके अंदर थोड़े चेंजेस यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट ड्यूटीज। ठीक है, अब शिफ्ट ड्यूटीज के अलावा जो आपका टाइम होता है, गिव योरसेल्फ सम ब्रेक, वेरी शॉर्ट ब्रेक देना है खुद के ब्रेन को रेस्ट करने के लिए, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग जैसा आप कर रहे हो, बट उसमें थोड़ी चीजें ऐड करनी है। जैसे जो आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है, अगर आपकी थ्योरी, यू कैन प्राउडली से कि मेरी थ्योरी 80% मेरी कंप्लीट हो गई है, या वो सब चीजें मेमोराइज्ड है, ठीक है। अब अगर हाँ 80% है, तब आपको अपने प्रैक्टिस वाले पार्ट को ज्यादा फोकस करना है। तो मेक प्लान, प्लान ऐसा बनाना है जो बहुत रिजिड ना हो, बहुत फ्लेक्सिबल भी ना हो, क्योंकि ओके कंफर्ट जोन के साथ में प्रिपरेशन नहीं होती गवर्नमेंट नहीं एग्जाम, हाँ ओके राइट? तो एक ऐसा प्लान बनाना जो रिजिड भी ना हो, बहुत फ्लेक्सिबल भी ना हो, उसमें आपको जो मेन चीज फोकस करनी है, अगर थ्योरी कंप्लीट है तो वो आएगा आपका प्रैक्टिस पार्ट, एंड जो आपके नेगेटिव मार्किंग की कंट्रोलिंग स्कीम है। 100 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग 20 to 25 का रेशियो रहता है, तो वो थोड़ा सा अगर रह कम रहा हो है। जाए। हाँ जब नॉर्सेट देते हैं तो नॉर्सेट के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर हमारा प्रिपरेशन टाइप में इतना है तो ऐसा होता है, जो ट्रेंड देखा है कि नॉर्सेट के एग्जाम में या किसी एग्जाम में वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हाँ उस चीज को क्लियर करने के लिए, ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम तक ना आए, इसके लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट होगी। सो अभी आपको इसके लिए क्या करना है, आप अपने मिस्टेक्स के लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ, अपने मिस्टेक्स को डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट करो, चाहे वो मिस्टेक्स आपकी मोर देन 20 हो रही है, मोर देन 50 हो रही है, उनको लिखो एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। और जो आप प्लान बनाओ उसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखना कि वो प्लान बहुत लंबे टाइम का प्लान ना हो। जितने भी लॉन्ग प्लान होते हैं वो कंटिन्यू नहीं चलते हैं, वो टाइम के साथ में चेंजेस होते हैं और लास्ट में प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सो अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। सो that is the thing you can manage along with your duties. So इस तरह से आप प्रिपरेशन करो तो definitely you will get selected in the NORCET. थैंक यू Thank you. थैंक यू। कैन आई सिट डाउन? Yeah, sure. Thank या you. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स। Same to you. ओके नेक्स्ट क्वेरी स्टूडेंट्स, आप लोग की और कोई क्वेरी है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। मैम थैंक यू। यू वेलकम अर्जुन। थैंक यू मैम। Komal, you can unmute yourself and ask your query. Komal, you can unmute yourself and ask your query.
Am I ask one question, Miss Sabina ma'am? Good evening, ma'am. Just a second, Good Sabina. evening, Komal. Good evening. How are you? Ma'am, I'm fine and you? बढ़िया, बताइए. मैम एक क्वेश्चन था ना, जीसीएसपी स्कोर वाला क्वेश्चन था कि जैसे हम मैक्सिमम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं जीसीएसपी का हेड इंजरी में, तो हाँ. कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम स्कोर में तो जो हमने कैलकुलेट किया था तो वो समझ में आ गया था कोमल, मैम। मैक्सिमम कोमल, ये वाला आपने YouTube पे वीडियो देखा? मैंने अभी रिसेंटली YouTube पे एक वीडियो डाला है. यस मैम। मैम मिनिमम स्कोर कैलकुलेट करना मैम वो तो आ गया था, पर मैक्सिमम स्कोर के लिए मिनिमम स्कोर को माइनस करेंगे जीसीएस का। कुछ नहीं करना. देखो, सबसे पहले याद रखो, GCS का टोटल मैक्सिमम स्कोर है 15. यस मैम। और प्यूपिलरी का मैक्सिमम स्कोर कितना है? 2. मैम 2 GCS का मिनिमम स्कोर है हमारा 3. 3 प्यूपिलरी वाला मिनिमम स्कोर है 0. 0। यस करेक्ट. मैम। अब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि टोटल आपका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा. मैक्सिमम. तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? GCS माइनस प्यूपिलरी, ये वाला फॉर्मूला है. यस मैम। तो GCS का मैक्सिमम लो, प्यूपिलरी का मिनिमम लो. GCS का मैक्सिमम 15 माइनस यस मैम। प्यूपिलरी का मिनिमम 0, तो कितना हुआ? मैम 15। 15. मतलब टोटल 15 स्कोर होगा मैक्सिमम. मिनिमम स्कोर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? GCS का आपको मिनिमम लेना है और प्यूपिलरी का मैक्सिमम लेना है. GCS का मिनिमम कितना है? मैम 3। और प्यूपिलरी का मैक्सिमम मैम कितना है? 2। 2. 2 3 से 2 गया 1। 1. आ गया. यस मैम। थैंक यू मैम। लिख लेना, ये नोट्स बना लेना, और वो सेशन को जरूर देखना. यस मैम। थैंक ओके यू मैम। जी, थैंक यू. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Amrita. Tell me, share your concern. Ma'am, I doubt about the mini test, ma'am. Your voice is not clear, Amrita. Ma'am, I have not completed the theory classes, ma'am. So I attend the mini test. Score is minimum, ma'am. Mini test not comfortable to solve this in the live classes. Mini test. So what you can do for this, Amrita, because what I understood for your query is you have not watched the video of that topic which the mini test has uploaded. Due to this reason, your score is not good, right? This is what I have understood. Is this your query? Mini test 3, ma'am, my score is 0, ma'am, because while monkeypox in maximum question you have this in solution. You have not covered the topic in the mini test, monkeypox question. Yes, ma'am, I have attended the mini talk. So what you can do, Amrita, because this is also a very important and recent update question which we have added in the mini test. All you have to do is, that's fine, the topic, because it is possible, it is going to be possible in upcoming test as well, that when you'll attempt the test and you will not, the topic which you have not read the question, you will attempt. So it is fine. What you have to do, you have to read the rational. I'm sure the rational part is very strong. Very detailed rational will be there along with this question, so that you can prepare your notes and you can simultaneously with this test, you can have a short note of monkeypox. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, So whosoever is attempting these mini tests, system wise test or scenario based test, this is the reason every time I have told, I am telling every student that whenever you are attempting these practice tests, make a short note of, or make a separate notebook of practice test only, because with the rational, with the rational part of these tests, you can make your own short notes. yes, ma'am. Because ma'am, I have not complete theory, ma'am. How to attend this test, ma'am? If you'll wait for completing the theory, then you'll attempt the test, that would be too late.
right? At certain level we have to change our strategy in this way, that okay, if the topic we have not completed yet, but still we have to attempt the test. Let's take an example of NNSAT, because going forward in the month of December you will be having NNSAT, which is a form of grand test. Now we need to understand the concept of attempting those questions which is out of the box or out of the topic, or topic which we haven't read yet, right? The reason behind, with the help of this MCQ, you will remember that MCQ because a topic you haven't read till now. You have not completed monkeypox, but you have attempted the question. Now you know that this is a monkeypox and such type of question can come in the upcoming exam. Right, Manish, can you please mute yourself? Right, Amruta? So in this way, you can remember for longer time and you can make notes of that topic, whichever MCQ you are attempting on the topic which you have not covered, right? For same situation, I'll tell to, this is something which I really want to tell to all the students. Do not wait for completing all the topic. Try to attempt MCQs as many as you can, but you should have a detailed rationale of that MCQs. Okay, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. Hello. Hello. Good Hello, evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मेरा नाम तृप्ति है। मैम मैं वर्किंग के साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ मैम। मेरा एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और मेरे को ये पूछना था कि मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना है, तो मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे कंप्लीट करूँ अभी, और एक दिन में मेरे को कितने एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, यही पूछना था मैम। I'll be giving you a solution for this problem. So first tell me, is your next NORCET is the only target? जो अभी NORCET आने वाला है, क्या वही आपका टारगेट है अभी, या you are planning to give your NORCET in 2025, hopefully in the September 1? मैम मेरा दोनों भी, मतलब अप्रैल का और हार्डली सितंबर का, ऐसे दोनों भी मेरे प्लान में दोनों में प्लान है। ओके, सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, then how is your command over that subject and how fast you grab things? वेरी वेल मैम, मतलब मेजर सब्जेक्ट का जो निगेटिव भी आता है ना मैम, वो कम आता है मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट ही आता है जो मैं टेस्ट देती हूँ उसमें। लेकिन मेरे को अभी बाकी के सब्जेक्ट का थोड़ा मतलब टेंशन आ रहा है कि कैसे कवर करूँ। ओके, एंड यू आर वर्किंग एज वेल, राइट? हाँ मैम, और वीडियो भी कैसे कवर करना है, मतलब पूरा वीडियो तो नहीं कवर होगा ना, मतलब प्लान सी में जो पूरे वीडियोस है वो कवर नहीं होगा इतनी जल्दी, तो फिर Okay, कैसे so करना है? now here you have to make a plan, strategical plan, where you have to include major and minor subject in your plan, जिसमें आप अपने ड्यूटी आवर्स के अलावा जो आपका टाइमिंग है उसमें आपको मेजर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, माइनर को कितना टाइम देना है, और आप कौन से सब्जेक्ट में कितने वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में योर कमांड इज वेरी गुड। क्योंकि बीएससी नर्सिंग किया है तो बेसिक चीजें हमने अपनी नर्सिंग में भी पढ़ी होती हैं, राइट? सो यू मस्ट हैव सम बेसिक ओवरव्यू कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, कौन से में कि आपको उसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। तो एक ऐसा प्लान बनाओ जिसमें आप एक माइनर सब्जेक्ट को ले रहे हो, एक मेजर सब्जेक्ट को ले रहे हो, वीक सब्जेक्ट को कैसे लेना है माइनर सब्जेक्ट में, मेजर को कैसे लेना है, उसका आपको एक प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस लेनी है, एंड मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने ही है, मिनिमम 200, अगर आपका अप्रैल वाला नॉर्सेट टारगेट है। तो ठीक है मैम। अगर इस चीज को फॉलो करोगे, यस अगेन आई विल से कि ये बहुत हेक्टिक होगा एक दिन में करना इतना सारा कंटेंट, तो आपको बहुत क्लियरली माइंड में एक ये टारगेट बनाना चाहिए फ्रॉम माय सजेशन, कि आपका जो नॉर्सेट का टारगेट हो वो अप्रैल का ना हो करके सितंबर हो, ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत हाई क्वालिटी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बस सुपरफिशियली सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लूं, जस्ट नॉर्सेट अटेम्प्ट दे दूं, ठीक है? सो you can follow these tips if you want to attain a good rank in NORCET. ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening.
मैम मुझे ये पूछना था, पीडीएफ कहाँ से करूँ? NN1 से करूँ या फिर पुराने वाले ऐप से करूँ? Dear, your content in NNL1 app is in this plan, ma'am. Am I audible? यस मैम। Yes. So, Rashmi ma'am, can you please clarify the students' doubt that what all content are being transferred from plan in NNL app, NNL1 app? See, students, you have to be very much focused on both of the application NNL and NNL1 both, right? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पास जो एक ही एप्लीकेशन रह जाएगा दैट इज NNL1, बट टिल द टाइम उसमें सारा NNL से कंटेंट रिफाइन होके जब तक अपलोड नहीं हो जाता तब तक आपको NNL और NNL1 दोनों यूज करना है। और अब बात आती है NNL1 एप्लीकेशन की, तो स्टूडेंट्स उसमें आपको वीडियोस, नोट्स, आपका क्वेश्चन बैंक और आपके टेस्ट पेपर, आप जाके देखो उसमें कंटेंट अपलोड हो रहा है। और स्टेप बाय स्टेप कंटेंट अपलोड होगा, स्टेप बाय स्टेप कंटेंट अपलोड होगा, उसमें एकदम से सारा कंटेंट अपलोड नहीं हो जाएगा, राइट? इसीलिए आप लोगों को दोनों ही एप्लीकेशन का एक्सेस दिया गया है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन बोथ ऑफ द एप्लीकेशन। पर मैम उधर तो लॉक्ड बता रहे हैं NNL1 पे तो। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए और उनको अपना क्रेडेंशियल दीजिए, टेक टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्या अंजना मैम रिप्लाई नहीं करते? Good evening, ma'am. आपकी रिलेशनशिप मैनेजर अंजना मैम है कि मनीषा मैम है? पहले आप ये डिसाइड कीजिए। अंजना मैम है। अच्छा ठीक है, आप आफ्टर द सेशन उनके साथ कनेक्ट कीजिए एंड शी विल हेल्प यू 100% और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? डोंट वरी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैं शिल्पा पान बोल रही हूँ। हाँ जी शिल्पा। मेरा एक डाउट था कि वो लास्ट टाइम साबिना मैम ने वो मंडे बूस्टर का सेशन लिया था कुछ, तो इस बार में क्या होगा? तो प्रैक्टिस पाल से क्वेश्चन डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम। मंडे बूस्टर्स की सेशन शिल्पा, अभी मैम का वेडनेसडे सेशन आया था ना, अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यूस सेशंस आ रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ब्रॉडकास्ट पे हम लोग हर रोज, आज भी सेशन था, आज भी सेशन था 4 बजे से मैम का। 5 बजे से हमने वो डाला हुआ था सारा लिंक, आपने फॉलो नहीं किया है मैम हमारे लिंक्स को। व्हाट्सएप चैनल पे डाला है, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट किया है, इसका मतलब 1-to-1 मैसेजेस गए हैं आपके। चलो मैम देखा था वो लास्ट टाइम हुआ था तो। शिल्पा मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एंड टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टेड है, क्या क्या सेशन है हमारे। एक तो हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन डॉक्टर आनंद सर के सेशन रहते हैं इंस्टा पे, जो उनकी इंस्टा आईडी है वहां पे, राइट? वो 1 बजे होता है उनका सेशन डॉक्टर आनंद का, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर आपको इंस्टा पे उनके पेज पे सेशन नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं करना है, NNL इंस्टाग्राम पे ही NNL1 का जो ऐप है ना, इंस्टा मतलब ऐप नहीं सॉरी, जो चैनल है इंस्टा का चैनल, उस पे मैसेज करो, जो डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि मुझे आज डॉक्टर आनंद का जो इंस्टाग्राम का सेशन था वो नहीं मिल रहा है, आप मुझे दे दो, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे इंस्टा पे ही। इंस्टा पे जैसे मैसेज हम करते हैं ना, DM, वो वहां पे हो जाएगा। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे डॉक्टर आनंद के सेशन होते हैं, 1 बजे होते हैं उनके सेशन। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यस, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे डॉक्टर आनंद के, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे होते हैं। मैं 4 बजे या 5 के अराउंड लेती हूँ टाइम, मैं अपने चैनल पे अपडेट कर देती हूँ। मेरा चैनल है नर्सिंग का फंडा विद सबीना। जैसे आज मेरा अभी एक सेशन हुआ था लाइव इंस्टा पे, वो 4 बजे था, साइड एक्स सोल्यूशन पे। अगर इफ यू कैन आफ्टर दिस सेशन, वो आप वो सेशन को देख सकते हो, वो वहीं रहेगा, सेशन रिकॉर्ड में पड़ा रहेगा, आप कभी भी जाके देख सकते हो, नोट्स भी वहां पे रहते हैं, राइट? इसके अलावा हमारा एक वेंसडे बूस्टर सेशन होता है, जो हर वेंसडे होगा। लास्ट वेंसडे था, लास्ट वेंसडे भी मैंने सेशन लिया था, ब्रैडन स्केल, वाटरलो स्केल और नॉर्टन स्केल पे, जो यूट्यूब पे ही है हमारे NNL1 के, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब कमिंग वेंसडे जो सेशन आएंगे वो आएंगे आपके प्रैक्टिस पर्ल बुक से सीरीज शुरू करेंगे हम, जो अब नेक्स्ट वीक आएगा उसमें जो वेंसडे है, तो प्रैक्टिस पर्ल बुक के MCQ डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, NNL से कोई रिप्लाई नहीं आया तो हर सब्जेक्ट का क्या होगा डिस्कशन? हर एक सब्जेक्ट का क्या डिस्कशन होगा? हर सब्जेक्ट का होगा। वी आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन पूरा सब्जेक्ट खत्म क्योंकि उधर मैंने तो रीजन
एक्सप्लेनेशन नहीं रहता था ना, इसलिए तो सबका क्वेश्चन ठीक ठाक से पता नहीं होता कि क्या बिल्कुल आंसर बिल्कुल, होगा, हम उसका पूरा डिस्कशन पूरे क्या होगा, सब्जेक्ट का खत्म इसलिए। करेंगे। एंड इन केस अगर आपको एनएनएल वन जो इंस्टा चैनल है उससे रिप्लाई नहीं मिलता, देन वेरी गुड, यू हैव पुट दिस इन माय नॉलेज। मैं वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगी कि अगर आपको कोई भी मैसेज आता है, यू हैव टू कन्वे, वो आपको शेयर कर देंगे। ओके जी। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रुपना। मैम माय क्वेरी इज दैट आई हैव मतलब मुझे मिली थी लिंक आनंद सर की, बट उन्होंने सिर्फ पहला सेशन जो सबको दिख रहा है मतलब मिल रहा है वही लिंक उन्होंने शेयर की। फिर मैंने उनको टेक्स्ट किया था वापस से कि मतलब दूसरे जो 2 सेशंस है वो नहीं मिल रहे हैं। फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्हें बोला कि दे आर नॉट लाइव स्टिल। बस। ओके लुबना, मैं एक बार कनेक्ट कर लेती हूँ डॉक्टर आनंद सर से भी एंड एनएनएल से भी, जो इंस्टा चैनल हैंडल करता है, वहां पे आपको मिल जाएगी। एंड ये ओके सारी चीजों के लिए आप अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर के जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो भी, उसको भी फॉलो करते रहिए, क्योंकि जितने भी जो भी स्टेटस जो होते हैं ये वीडियो वाले सेशन वाले, ये लोग अपने स्टेटस पे अपलोड करते हैं, जी स्टेटस मैम। लगाते हैं कि आज ये सेशन है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज मैम वन इंस्टा मोर। सेशन है, आज इंस्टा सेशन हुआ है साइडेड जी सोल्यूशन के मैम। ऊपर, जी और मैम। ये मेरे पेज पे आपको मिलेगा। लाइव था, 4 बजे ये लाइव हुआ था, ये रिकॉर्डेड वहीं पे रहेगा, नोट्स भी वहीं पे अपलोड कर दिए मैंने, राइट। मैम आपके सारे सेशन मिल जाते हैं, बस आनंद सर के नहीं मिलते। अरे आनंद सर के सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं ना, उनके ब्लू टिक वाले हैं सर, तो इसलिए खोजना पड़ता है। जी मैम एक और बात थी, जैसे मतलब NNL 1 पे अभी वीडियोस हम देख रहे हैं, बट आप बोल रहे हो कि दोनों से देखो, ऐसे वो हो गया ना कि इससे देखिए किससे देखना है फिर। देखे तो देखे, किससे देखे, देखो, जो अभी फिलहाल अगर आपके पास एनएनएल वन का एक्सेस है आपके पास, जी मैम। तो एनएनएल वन से देखो, एनएनएल पे जाओ, मतलब जिसके पास एनएनएल वन का एक्सेस आ गया है, जो रेफर जिसमें सारी चीजें उन्हें दिख रही हैं, उनके लिए आप एनएनएल को छोड़ दो, अब बाय बाय बोल दो। अब नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एनएनएल एप्लीकेशन। जिसका भी एक्सेस मिल गया है एनएनएल वन का, एंड दे कैन ओपन एवरीथिंग, उनको टेस्ट ओपन हो रहे हैं, जो मिनी टेस्ट हैं, जिनके वीडियो ओपन हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, दे शुड डेफिनेटली ओनली रिफर एनएनएल वन, वो एनएनएल वन को ही रिफर करें। जी मैम, थैंक यू मैम। Okay, students, so I हेलो। think all the questions are answered. हाँ मैडम, एक मेरे क्वेश्चन था कबीना मैडम से। हाँ जी, रामा राम जी, हाँ बताइए। हाँ, हाँ जी मेरे राम। क्या IGCR वाला इंटरव्यू अभी स्किल टेस्ट है, तो मैडम मुझे स्किल टेस्ट के बारे में बताना था, 27 को है। अरे पहले किसी बच्चे ने ये बोला था, उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। आप लोग कनेक्ट नहीं करते हो, एक तो मैंने खुद बोला था आप लोग कनेक्ट करो, आप कनेक्ट ही नहीं करते, आप ही नहीं, आप तो नहीं थे। नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ। रामा राम, एक काम करते हैं, 27 तारीख को है ना हाँ कल, हाँ इफ यू आर अवेलेबल टुमारो, आप जी। अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बोलो, हम लोग कल फोन पे कनेक्ट करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्किल असेसमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। बस आप ओके। थोड़ी डिटेल भेज देना अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कि कौन सा एग्जाम है जिसमें आप जी अपियर करने वाले हो, ठीक है। जी जी फिर हम जी लोग जी पूरा जी। डिटेल में डिस्कस करेंगे ये। ओके मैडम, थैंक यू। ये इंफॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है। सुन ले, सबीना मैम के साथ अगर स्किल टेस्ट के लिए कनेक्ट करना है तो अपने अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स को काइंडली कौन सा एग्जाम है, कौन से एग्जाम के स्किल टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करें। हम मैम से कनेक्ट करके सेशन शेड्यूल करके आप लोग को कनेक्ट करा देंगे, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर मोर देन वन स्टूडेंट है तो जूम सेशन कर लेंगे, सारे बच्चे जो स्किल, जिनको एग्जाम है स्किल वाले, वो एक साथ आ जाएंगे, हम लोग एक साथ जूम ले लेंगे, है ना। बेटर मैम, क्योंकि बहुत सारे बताते ही नहीं हो आप लोग, हाँ ये बच्चे बताते ही नहीं है। ठीक है जी, एक सेशन ले लेंगे जिसमें स्किल असेसमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो जितने भी बच्चे जिनका अपकमिंग कोई स्किल असेसमेंट वाला टेस्ट है, डू कनेक्ट योर रिलेशनशिप मैनेजर, अपना एग्जाम का नाम और अपना नाम बता दो, उसी के हिसाब से हम जूम सेशन अरेंज कर लेंगे, कल ही कर लेंगे। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ज्योति सिंह। मैम मेरा एक डाउट ये है कि मेरे मेजर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक OBG है और दूसरा पेडियाट्रिक है और तीसरा मैम नियर टू फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा वीडियो और बचा है 2-3 टॉपिक का।
इतने सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं मैम, और मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मेरा मेंटल और मेडिसिन अपना एमएसएन से, और कम्युनिटी मैम, और ये 3 सब्जेक्ट मेरा कंटिन्यू अभी चल रहा है मैम, और साथ में फाउंडेशन के जो बचे हैं उनको कर रही हूँ मैम। अभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मुझे ये डाउट है मैम कि मुझे प्रिपरेशन किसकी करनी चाहिए, नॉर्सेट जो 8.0 आ रहा है या फिर इसके बाद 8.0 वाला? 8.0 अरे बहुत आधे क्रॉस कर चुके हो आप। 8 पे हो जाएगा। आपने 3 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं दिसंबर से पहले पहले, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस अगर मैं देखूं तो। और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, यू सेड आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिसिन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग मेडिसिन, अगर सर्जरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुरू सर्जरी नहीं हो किया चुका है है मैम, पूरा सर्जरी कंप्लीटेड है, मेडिसिन करते। तो बढ़िया है, फिर तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। 8.0 होगा। 9.0 तो सोचना ही नहीं है, 8.0 ही हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पे जैसे ही आपका होता है ना, अभी एमसीक्यू कम रखो, फोकस वीडियो कंप्लीट कर लो। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, एमसीक्यू का नंबर ज्यादा एंड रिवीजन, फिर रिवीजन दोबारा से सारा सब्जेक्ट रिवाइज करना शुरू करना है। बट मैम एक डाउट है मुझे कि मैं मतलब वीडियोस पे ज्यादा फोकस करूं या फिर रिवीजन पे और एमसीक्यूज पे, क्योंकि मैम इधर पे जाओ तो उधर वीडियोस रह जा रहे हैं, और इधर करो तो ये हो रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मैम। या फिर मेरे मन में कभी कभी आता है अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो 9.0 पे जाऊं, अच्छे से थ्योरीज कंप्लीट करके, फिर साथ में इसको रिवीजन और एमसीक्यू को लेके कहीं इसमें प्रॉब्लम ना हो जाए कि 8.0 में ज्यादा फोकस करूँ तो हड़बड़ हड़बड़ में मेरा कुछ छूट ना जाए, ऐसा करके आ रहा है माइंड में। देखो अब ये माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पहले ही सेट कर लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव डिसाइडेड पहले से ही कि मैं 9.0 ही दूंगी। अब यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने गोल अपना 9.0 सेट किया है, बट आई वुड रिकमेंड अटेम्प्ट 8.0 एज वेल, क्योंकि 1% लक होता है, पता नहीं कब सरस्वती बैठ जाए तब 8.0 में ही निकल जाए, है ना। तो 8.0 भी अटेम्प्ट करना। इतना करो कि जो मेजर सब्जेक्ट आप कर रहे हो पहले वीडियो पे फोकस करो। जी मैम। वीडियो, लेकिन वीडियो के साथ एमसीक्यूज। तो वीडियो एमसीक्यूज रिवीजन, जिसमें आपका मेजर परसेंटेज वीडियो का होगा, 60% वीडियो का है, 30% आपने जो है प्रैक्टिस को दिया, एंड 10% आपने रिवीजन को दिया। तो इस तरीके से अपनी आराम से तैयारी करो, प्रेशर नहीं लेना। जब आप फेब्रवरी में पहुंचोगे, फेब्रवरी जी मैम। के महीने में, फेब्रवरी के महीने तक कोशिश करो कि आप सारे मेजर सब्जेक्ट खत्म करो। जी माइनर पे ध्यान मत दो अभी, क्योंकि अगर आप 9.0 फोकस करो तो मेजर करो। मेजर में फार्मा एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी रखना, ठीक है। फेब्रवरी के महीने में आप क्या करोगे, फास्ट ट्रैक आएगा आपका 8.0 में, जी मैम। वो फास्ट ट्रैक अटेम्प्ट करना। उस फास्ट ट्रैक से आपके माइनर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और रिवीजन हो जाएगी। जब आप पेपर देने जाओगे 8.0 के लिए, आप 8.0 के लिए भी कम से कम 70% रेडी होगे, राइट। तो इन केस अच्छा है अगर हो जाए, नहीं हुआ तब आप दोबारा से जो माइनर सब्जेक्ट बचे थे उनको फोकस करना, उनके वीडियो देखना पूरे डिटेल जो आपके C+ के वीडियो है, और एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, और दोबारा से रिवीजन साइकिल स्टार्ट करना। मैम तब तक तो प्लान भी एक्सपायर हो जाएगा फिर से परचेस करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम। आप प्लान बी, अब ये आपके रिलेशनशिप मैनेजर बताएंगे कि आपकी एक्सपायरी डेट कब है। आपको फास्ट ट्रैक सेशन मिलेंगे, आप फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल हो। मैम पता नहीं मई में, लेकिन एक्सपायर हो जाएगा मैम मेरा। मई में होगा ना, मई 2025 में होगा। जी मैम। तब तक तो सब मिल रहा है आपको, नोट्स वोट्स सब मिल रहे हैं, अपने नोट्स बना के रखो। अब मई के बाद आप थोड़ा, ये तो आपको करना पड़ेगा ना, दूसरी रिवीजन करनी है तो वो खुद से करनी पड़ेगी। अब नॉट सेट 8.0 मई तक आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक आपका फेब्रवरी मंथ से शुरू होगा। तो फास्ट ट्रैक से अभी अपने मेजर कंप्लीट कर लो अच्छे से, बिल्कुल टाइम देके, जैसे होता है ना आपको धीरे धीरे जो मेजर करने हैं, अपना मेजर पे फोकस करो। फेब्रवरी में माइनर वहां से कवर कर लेना, या एग्जाम जरूर देना 8.0 का, और तो अगर निकल जाएगा तो मुझे जरूर बताना। ओके मैम। मैम तो अभी मुझे मेजर में मतलब एक दिन में कितना कवर करना चाहिए, जो मैं 4 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ अभी, तो उसमें मुझे एक साथ 4 पढ़ रहे हो? जी मैम। एक तो मेंटल, और एक फाउंडेशन का जो बचा हुआ है, और एमएसएन से मेडिसिन, दीपक मारवा सर का और गोयल सर का मेंटल, और एक कम्युनिटीज मैम। देखो अगर आप ये पहले कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, 4 सब्जेक्ट, लेकिन 4 सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बैलेंस वे में 2 सब्जेक्ट ले लो। अगर कर सकते हो, करते आए हो तो इट्स गुड, अगर आप 4 सब्जेक्ट बैलेंस कर रहे हो, और समझ में भी आना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज 2 सब्जेक्ट थोड़ा लो थोड़ा साथ। कर रही हूँ,
समझ में आ रहा है इसलिए मैम, क्योंकि मैं अगर कोई लेंदी वीडियो है तो उसको मैं हाफ कर दे रही हूँ मैम, मैं नेक्स्ट डे के लिए उसको छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि सेम सब्जेक्ट में स्टिक रहती हूँ तो फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ मैम। ठीक है, तो आप इसी फ्लो में चलो। ये 4 सब्जेक्ट को जो आपको जिसमें लग रहा है दिस वर्क्स वेल फॉर यू, तो ये 4 सब्जेक्ट को लेके आप एक सीक्वेंस में चलो। इन्हीं 4 सब्जेक्ट को ब्रेक पार्ट में डिवाइड करो, और जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना उनको सुबह के लिए रखा करो, मॉर्निंग आवर्स के लिए। बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल एंड में रात में मत रख देना, और दिन में बोरिंग सब्जेक्ट मत रखना, नहीं तो बहुत नींद आएगी। जी मैम, वो कम्युनिटी पढ़ते टाइम तो यही हो रहा है मैम। कम्युनिटी थोड़ा ऐसा है ना, थोड़ी थ्योरी ज्यादा है उसमें। इसलिए कम्युनिटी मैं को बीच थोड़ा में मैम फंडा को डाल देती हूँ, जब फंडा पढ़ती हूँ तो अपने आप नींद खुल जाती है मैम। हाँ, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट बीच में डालो जहाँ पे नींद ज्यादा नहीं आए आपको। जी मैम, ऑल द बेस्ट ज्योति। थैंक यू सो मच हेलो मैम फॉर मैम, गुड इवनिंग मैम। हेलो। स्नेहा स्नेहा हाँ प्लीज स्नेहा बोलो बोलो। एक्चुअली मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सबीना मैम से कि मैम ये जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो मेडिसिन का पार्ट है दीपक मरवाल सर का, जैसे सर्जरी में रोहन सर का कई कई सारे अपडेटेड वीडियोस आए हैं, लेकिन मेडिसिन में तो फिलहाल दीपक सर का वो पुराने वाले वीडियोस ही है। तो मैम अभी जो मेडिसिन का प्रिपेयर करें फॉर नॉर्सेट 8.0 के लिए, तो उसका कहाँ से प्रिपेयर करें? मतलब पुराने वाले जो ऐप पे जो दीपक सर का जो वो वीडियोस है वहां से ही प्रिपेयर करें, और बुक्स कौन सा फॉलो करें, बस यही पूछना था। डॉक्टर मारवा का जितना भी कंटेंट अपलोडेड हुआ है NNL1 पे, वो सारा अपडेटेड है, वो बिल्कुल न्यू रिकॉर्डिंग है, सारी की सारी नई मैम रिकॉर्डिंग है। मैम अभी तो NNL1 का एक्सेस नहीं मिला है मैम। NNL ऐप पे जो कंटेंट अपलोड हुआ है वो भी अब बिल्कुल नया कंटेंट है, 2024 में रिकॉर्ड हुआ है वो। सर ने इसी साल रिकॉर्ड किया है। तो सर का वही कंटेंट जो NNL1 पे जाएगा या जो अभी NNL ऐप पे है, वो बिल्कुल ही न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट है। राइट, यू कैन फॉलो दैट कंटेंट ओनली। इसके अलावा अगर आप बुक रेफर करो तो बुक किसके लिए रेफर करनी है? प्रैक्टिस के लिए? हाँ मैम, प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा थ्योरी के लिए भी, थ्योरी साइड बाय के लिए साइड। देखो, प्रैक्टिस के लिए तो आपकी मास्टर स्ट्रोक बुक आपके पास है, प्रैक्टिस पर या जी मास्टर मैम, स्ट्रोक? मास्टर स्ट्रोक नहीं मैम, प्रैक्टिस पे है। ठीक है, प्रैक्टिस पर है तो एक तो आपके लिए वो बुक हो गई। अगर आपको एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चन भी देने, यू कैन रेफर लिपिनकॉट और इंडियन टच में आपको टारगेट हाई बुक, ये दोनों में से कोई भी एक ले लो। मैम लिपिनकॉट लेटेस्ट एडिशन। टारगेट हाई बुक का तो मेरा 6th एडिशन है मेरे पास, तो उसका नया एडिशन आ चुका है आ चुका ऑलरेडी। है, हाँ, उसका नेक्स्ट नया एडिशन, और वो उसमें थ्योरी भी कवर है। तो टारगेट हाई का जो यस मैम। लेटेस्ट एडिशन है उससे आपके डुअल पर्पस सॉल्व होंगे, आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और आपके प्रैक्टिस MCQs भी हो जाएंगे। तो मैम एक्चुअली 6th एडिशन तो है, तो फिर ले लूं नया वाला एडिशन या पुराने वाले बिल्कुल, से ही? नए वाले एडिशन ले लो। नए वाले एडिशन में IBQ क्वेश्चन, बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। यू कैन ओके रेफर मैम। जो टारगेट हाई का न्यू एडिशन है वो वाला। अच्छा अच्छा, ओके मैम, ठीक। ओके स्नेहा, ऑल द और बेस्ट। मैम और एक बात मैम, रंजन सर का जो है फार्माकोलॉजी का जो जितने भी वीडियोस है एनिमल पुराने वाले ऐप पे, क्योंकि अभी तो एक्सेस नहीं मिला है न्यू ऐप का, तो मैम वहां से ही वहां से ही करूँ तो रंजन सर का जो भी जितने भी वीडियोस है? फार्मा के अभी NLL अगर 1 का एक्सेस नहीं मिला, यू कैन गेट द एक्सेस विद इन 1 or 2 days। इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ दिस वीक ओनली, इसी 1-2 दिन के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है और आपने स्टार्ट कर दिया है फार्मा, तो आप कर लो, कंटिन्यू करो फार्मा की प्रिपरेशन फ्रॉम NNL एप्लीकेशन। जब आप पूरा कर लोगे कवर, तो रिवीजन के लिए NNL1 रेफर कर देना, फिर आप 2x की स्पीड में अपनी रिवीजन फार्मा वहां से कर देना। ओके ओके मैम, ठीक है। ये जो आपने लिपिन कोड बताया, ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का? नहीं नहीं, ये अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की नहीं है, ये आपकी एनक्लेक्स ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट की बुक है, जिसमें MCQ है, प्रैक्टिस MCQs है। जैसे मौसमी और अच्छा मैम, टाउन, थ्योरी है या ओनली MCQs? सिर्फ MCQ है, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये आपके लिए। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच। Okay, students, so we are going to wind up this session, right? And we will be meeting you next week again. तो आप लोगों के जो भी demanded themes हैं, so you can message us. We will see कि like what we are coming in the next week. So all the very best, student, and stay connect with us and keep sharing your feedback. And all the very best. Thank you, students, for all the time. And Thank you, ma'am.
my end. And again, thank you to all the relationship manager and Margdarshak, Ms. Vaishali, for conducting this beautiful session and guiding all the students. Again, thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वैशाली Thank you, मैम ma'am. एंड गुड बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और हमें भी साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए। हम आपके क्वेश्चन का वेट करते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, हमारा सेशन भी बहुत इंटरेक्टिव होता रहेगा, मीनिंगफुल होता रहेगा। आप लोगों के लिए ही है ये सेशन, तो अपने क्वेश्चन सारे हफ्ते में जमा करते रहिए और हमें सेंड करते रहिए, जैसे हम सबीना मैम को सेंड करते रहे और आपके आंसर्स मिलते रहे। ठीक है? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.